Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I am going to solve a computer science model paper that is 2025. Let's start the session. Section A. Question number 1. What is the primary purpose of using a histogram in data analysis? Option A is to show the relationship between two variables. Option B is to display the distribution of a single variable. Option C is to summarize the mean and standard deviation of data. Option D is to compare categorical data. तो यहाँ पे correct option है to display the distribution of a single variable. तो B option है, ये correct option है इसके लिए. ठीक हो गया. Next move करते हैं हम. Question number 2. Which computational thinking process involves removing unnecessary details to focus on essential part? Essential part पे कौन सा focus करते हैं? उसको क्या कहते हैं? Decomposition कहते हैं, pattern recognition कहते हैं, abstraction कहते हैं, design, algorithm design कहते हैं. तो उसको हम कहते हैं abstraction कहते हैं. Number C. ओके, सी ऑप्शन दैट इज अब्स्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है, हम अननेसेसरी डिटेल पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ जो उसका कोर पॉइंट्स होते हैं ना, कोर फंक्शनैलिटी होती है, उस पे फोकस कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is a method used to prevent unauthorized access to a network? वर्म कहते हैं, वायरस कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं या स्पाईवेयर कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज फायरवॉल. What is the hexadecimal representation of binary number? आपके पास नंबर लिखा हुआ है 10101110. तो मैं यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाता हूं. ये 4 का ग्रुप ये बनेगा और इसके बाद ये 4 का ग्रुप बनता. तो इस सूरत में क्या बनेगा, ये देखिए 8 4 2 1. 8 + 4 12, 12 + 2 14. 14 को हम लिखते होते हैं ई, और ये होता है 10. 10 को हम क्या लिखते होते हैं, 10 को हम लिखते हैं ए. 10 को हमने लिखा ए. तो इस तरह मेरे पास ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, ए ई आ जाएगी. ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगी. ये देखिए, ये 8 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 1 था. 8 और 2 ऑन है, 8 + 2 10. तो ये 10 का कोड बनता है, ये 10 का कोड बनता है, ये 14 का कोड बनता है. 10 को हम ए लिखते हैं, 14 को हम ई लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is an example of practicing good digital citizenship? Engaging in respectful online communication, sharing sensitive information without permission, no. Plagiarizing content from the internet, no. Ignoring copyright law, no. The correct option is the first one, that is engaging in respectful online communication. Question number 6. Which of the following symbol is used to identify single line comment in Python? That is this. Option B. Question number 7. Which of the following is an example of an efficient algorithm? An algorithm that finds an item in a list of 1000 items by checking each one. An algorithm that prints all the numbers from 1 to 1000. An algorithm that finds an item in a sorted list of 1000 items by dividing the list in half each time. An algorithm that repeats the same task multiple times without any change. The correct option is this one, because it divides the list by half. Items by dividing the list in half each time. तो ये ज्यादा efficient algorithm होगा. What is the primary purpose of a digital footprint? To record all digital activities and data shared online which can be accessed by others. To track physical steps and location. To store cookies and browsing history for future reference. To provide secure access to online banking. The correct option is this. To record all digital activities and data shared online which can be accessed by others.
In the field of artificial intelligence, which subfield focus on enabling machine to understand and interpret human language? That is called computer vision, robotics, machine learning, and natural language processing. The correct option is natural language processing. Question number 10. Which of the following statement best describe the role of digital entrepreneurship? It focuses solely on traditional business models without incorporation digital technologies. It relies on manual process and paperwork for business operation. It avoids online marketing and sales channels. It leverages digital technologies to create innovative product, services, or business model. That is option D. This one is the correct option. Next question, 11. Which of the following is a significant environmental concern association with the growth of data centers? Lower water consumption, decrease electronic waste, higher carbon emission due to energy consumption, increased paper waste. The correct option is higher carbon emission due to energy consumption. That is option C. Question number 12. What will be the output of the following statement for I in range 5? Print I, it will start from 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. This one is the correct option. 5 will not be printed. Question number 13. Which of the following digital tool is commonly used for market research and analysis in digital entrepreneurship? Social media platform, email clients, spreadsheet software, fax machines. The correct option is the spreadsheet software. Section 2. Correct the following Python code segment by removing errors. अभी देखिए इसमें पाइथन कोड को कैसे आप करेक्ट कर सकते हो. आपने लिखा num equal to 10. आप लिखते हो num equal to 10 और num1 equal to 10, num equal to 5 without double quotation, और फिर आप करते हो result equal to num1 plus num2, और ये प्रिंट इसका आपने क्या कर दिया, रिजल्ट प्रिंट कर दिया. तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट 10 प्लस 5 15, रिजल्ट इसका 15 आ जाएगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, num1 इक्वल टू 10, फिर दोनों को डबल कोट्स में भी लिख सकते हो. num2 इक्वल टू 5, इसको भी डबल कोट्स में लिख सकते हो. और आपने क्या कर दिया, आपने रिजल्ट कर दिया रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, num प्लस 1 num2, और फिर आपने लिख दिया प्रिंट, रिजल्ट कर दिया. तो इस केस में वो पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट कर देगा, इनको कंकैटिनेट कर देगा. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वो कह रहा है फ्रूट इक्वल टू इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, प्रिंट फ्रूट 3 कर रहा है, ये देखें, ठीक है. जबकि इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 पे है, इसका इंडेक्स 1 पे है, और लाहौर का इंडेक्स 2 पे है. तो इसको क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे प्रिंट फ्रूट, क्या करना चाहिए, इसको प्रिंट फ्रूट ऑफ 2, ब्रैकेट में 2 लगा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स इसका 2 ही है, ठीक है. तो इसको ऐसे लिखेंगे. नंबर 3, नम इक्वल टू 10, नम इक्वल टू 10, नम इक्वल टू 0. किसी भी वैल्यू को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइंड होता है, ठीक है. तो आपने इसको अनडिफाइंड नहीं करना, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. आप लिखते हो नम, आप लिखते हो नम इक्वल टू num1 इक्वल टू 10 लिख लो, num2 इक्वल टू 2 लिख लो, रिजल्ट इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2, और बाद में आप क्या कर लो, प्रिंट, रिजल्ट प्रिंट कर लो. ठीक हो गया. तो इस तरह ये ठीक हो जाएगा.
नेक्स्ट हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इस ऑप्शन में देखिए, स्टेप 1 इनिशियलाइज द वेरिएबल सम विद 0, इनिशियलाइज अ वेरिएबल i विद 2 से अब वो इनिशियलाइज करेगा, while i इज लेस देन और इक्वल टू n, add i to sum increment by 2, print sum, modify the pseudocode to print the product of odd numbers from 1 to 30। तो यहां पे क्या करेगा, इनिशियलाइज विद वेरिएबल i विद 2, आपने क्या करना, इस 2 की जगह पे जो i इक्वल टू i विद 2 लिखा हुआ ना, आपने क्या लिखना, आपने लिखना i विद 1 से स्टार्ट करे। आपने किससे स्टार्ट करना, 1 से, विद 1, while i is less than or equal to n, add i to sum increment i by 2। सिर्फ इसमें आपने चेंज करनी है, बाकी सारे स्टेप सेम हो गए। लेकिन इसमें देखें, इसमें वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर करना ना, तो आप सम विद इनिशियलाइज वेरिएबल विद सम 0 की जगह आपने क्या करना है, इसको 1 से इनिशियलाइज करना है। एक चेंजिंग और करनी है आपने, आपने क्या करना है, 1 से इनिशियलाइज करना है। और एड आई टू सम, तो यहां पे आपने ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। यहां पे भी आपने चेंजिंग अप्लाई करनी है। तो आपके पास करेक्ट एल्गोरिथम क्या बनेगा, मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूं जी। करेक्ट एल्गोरिथम, इनिशियलाइज विद वेरिएबल प्रोडक्ट विद 1 के साथ मैंने इनिशियलाइज कर लिया, इनिशियलाइज द वेरिएबल i विद 1 के साथ इनिशियलाइज कर लिया, i इज लेस देन इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट बाय i, फिर इंक्रीमेंट i बाय 2, और बाद में हमने क्या कर दिया, प्रिंट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। उसमें सम था तो इसलिए वहां पे वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एस उसने क्या लिया, सम में 0 इनिशियलाइज किया, हमने 1 इनिशियलाइज करेंगे प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर द लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप की इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है। गिव एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ, डेली लाइफ में हमने इसकी एग्जांपल देनी है। द स्लोप respect the rate of change between two variables. The intercept is the value of the dependent variable when the independent variable is 0. Example, in a taxi fare equation is fare equal to 5 plus 2x. Here 2 is slope, cost per kilometer, and 5 is the intercept. This is an example of daily life of the slope and intercept. Question number 2. Briefly explain any 3 types of cloud computing model. आपके पास मॉडल्स आपने 3 टाइप्स के, आपने IaaS लिखा। IaaS means infrastructure as a service, offer virtually computing resources over the internet. Number second is आपने लिखा PaaS means platform as a services, provides a platform to develop, run, and manage applications like Google applications. Number 3, SaaS, software as a service, deliver software application over the internet like Google Docs, Microsoft 365, Office 365. तो ये आपने 3 इसकी टाइप्स लिख दी क्लाउड की। क्वेश्चन नंबर 3, a city healthcare provides in the process of upgrading its software, वो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहता है, to improve health patient care and enhance data security. Using this case study, recommended the most suitable implementation method of SDLC. Justify your recommendation by outlining any 2 consideration. Number 1, allow updates is small, manageable parts without disrupting healthcare services. That is called incremental model. One recommendation is SDLC method, that is incremental model. Due to these 2 are the justification to select the incremental model. Second option is enhances data security and patient care gradually with testing at each phase. आप उसको हर फेज पे टेस्ट भी कर सकते हो, इसलिए हमने उसमें इंप्लीमेंट करेंगे incremental model. Question number 2, differentiate between supervised and unsupervised learning with examples. सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल्स। हमने लिखा फीचर्स लिखे,
सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। डेटा टाइप्स में लेबल डेटा लिखा और इसमें अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड डेटा। एग्जाम्पल ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन इन शॉपिंग। एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग में यूज लेबल डेटा टू ट्रेन मॉडल्स एंड प्रिडिक्ट आउटकम्स। उसमें हम डेटा को लेबल करते हैं और ट्रेन करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, यूजेस अनलेबल्ड डेटा टू फाइंड पैटर्न और ग्रुप डेटा। ये इसमें डिफरेंस है सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई प्रोटोटाइपिंग इज इंपॉर्टेंट? गिव एनी 3 रीजंस। नंबर 1, हेल्प्स गैदर एक्यूरेट यूजर रिक्वायरमेंट। इसमें हम यूजर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट गेट करते हैं, क्योंकि यूजर को नहीं पता होता एक्चुअली वो क्या चाहता है। तो हम उसको एक प्रोटोटाइप दिखाते हैं और प्रोटोटाइप दिखाने के बाद हम उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, उससे हम आउटपुट लेते हैं कि क्या आपको इसी तरह की और चाहिए। फिर वो उसमें चाहिए बताता नहीं, मुझे इसका कलर ये चाहिए, मुझे यहाँ पे फॉर्म चाहिए, मुझे बटन यहाँ पे चाहिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यूजर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि वो पहले से हमारे पास कुछ बना बड़ा होता है तो हम उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इसलिए रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट हो जाता है। इंप्रूव यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड सिस्टम यूजिबिलिटी, और इसमें यूजर की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, यूजर देख के खुश भी हो जाता है और यूजर को पता भी चल जाता है कि मैं एक्चुअली क्या चीज चाहता है। एंड सिस्टम यूजिबिलिटी, और फिर सिस्टम यूजिबिलिटी के लिहाज से हम यूजर के लिहाज से वो प्रोडक्ट भी बनाते हैं, उसके लिहाज से हम उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। जी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी स्केलेबिलिटी के लिहाज से बात करते हैं। तो इजीली स्केलेबल बाय एडिंग नोड्स टू सेंट्रल हब, अगर हम इसको इजीली एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक इसमें हब लगाएंगे सेंट्रल हब, तो हम इजीली इसको एक्सटेंड कर सकेंगे। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में देखें, डिफिकल्ट टू स्केल विदाउट अफेक्टिंग लूप। ये रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि रिंग की फॉर्म में होता है वो डिवाइस। जो रिंग टोपोलॉजी में देखें, डिफिकल्ट टू स्केल विदाउट अफेक्ट लूप। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो फर्स्ट नोड लास्ट नोड के साथ इंटरकनेक्ट होती है, फर्स्ट नोड लास्ट नोड के साथ कनेक्ट होती है, जस्ट लाइक अ रिंग शेप। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होती है स्केल विदाउट अफेक्टिंग लूप। रिलायबिलिटी, फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट अफेक्ट नेटवर्क, हब फेलियर ब्रेक्स नेटवर्क। कहते हैं कि अगर कोई दूसरी डिवाइस अगर कोई इफेक्ट हो, कोई इसमें प्रॉब्लम हो, तो वो नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी हब फेलियर नहीं होनी चाहिए। अगर हब फेलियर होगी तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन डिस्टर्ब होल नेटवर्क। इसमें एक डिवाइस भी फेलियर होती है तो आपका पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। आर्किटेक्चर, सेंट्रलाइज्ड विद हब, इसमें सेंट्रलाइज्ड हब होती है और उसके साथ सब के सब कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सर्कुलर विद ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू अदर। ये रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है। कंपेयर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल विद एग्जांपल। तो मैंने ये क्या करता हूं, मैं एक यहां पे मैं कहता हूं डिफाइन फंक्शन। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया और इसमें मैं कहता हूं x इक्वल टू 5 और मैं कहता हूं प्रिंट कीजिए x को, तो वो 5 प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। और यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं y इक्वल टू 10 और मैं फिर कहता हूं प्रिंट कीजिए y को, तो ये यहां पे वो क्या करेगा, 10 वैल्यू वो शो करेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं प्रिंट कीजिए x को, तो वो कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल x। ये देखिए, ये लाइन थी ना आपकी, तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन था, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया और फंक्शन में वेरिएबल मैंने x इक्वल टू 5 लिखा। तो ये लोकल वेरिएबल, ये बिहेव करेगा एज अ लोकल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल की एग्जांपल हुई, ये है ना, ये लोकल वेरिएबल बन गया। ठीक है, और y इक्वल टू 10 ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल बन गया।
लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की मैंने आपको एग्जांपल बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिनेरियो and identify whether the waterfall or agile method would be the most suitable for development. यहाँ पे हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाटरफॉल बेस्ट होगा, डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन अजाइल होगा, क्योंकि अजाइल में रैपिड डेवलपमेंट होती है। दे आर फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन पे। डेवलपिंग इन वेब एप्लीकेशन अजाइल मेथड, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन अजाइल मेथड, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन that is waterfall, public works projects that is waterfall, research project that is agile methods. Agile method is more emphasized on implementations, while waterfall method is used to develop projects with clearly defined requirements and sequential phases, such as building constructions, जबकि agile is used for flexible and iterative development, like developing a mobile application, web application. What is an assistive technology also write down any two uses in daily life. Assistive technology क्या होती है? Assistive technology refers to device or software designed to help individual with disabilities people perform daily tasks, like screen reader for visually impaired users, hearing aids to enhance sound for those with hearing loss, जो कि स्पेशल पीपल्स के लिए, जो जिसमें डिसेबिलिटीज होती है उनके लिए टेक्नोलॉजी असिस्ट जो की जाती है उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑन एनी थ्री पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एआई सिस्टम। एआई सिस्टम के आपने पॉजिटिव इंपैक्ट लिखने हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ह्यूमन वर्कलोड, डेफिनेटली रोबोट काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो वो ह्यूमंस एफर्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं एफिशिएंसी के साथ। हेल्प इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन। मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल फील्ड में रोबोटिक्स एआई बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, जहां पे वो ह्यूमंस सही तरीके से वहां पे, यानी कि उसको किसी भी किस्म की कोई फियर खौफ होता है या कोई वो उसको सेंसिटिव ऐसे फील्ड होती है जहां पे ह्यूमन नेकेड आईज के साथ या वैसे करे जो उसमें काम करता है, प्रॉब्लम हो सकती है उसको, तो वहां पे रोबोटिक्स काम कर रहे हैं, क्योंकि रोबोटिक्स का कोई ऐसा मसला नहीं है एज कम्पेयर टू ह्यूमन के। एनेबल ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री एंड स्मार्ट डिवाइसेस, तो ये तीन इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग सिनेरियो बाय आइडेंटिफाई वेदर द लिनियर और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज मोर एप्रोप्रिएट चॉइस, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर्स। ओके, सिनेरियो बाउंडेड डेटा रेंजेस, आई हैव रिटन लिनियर सर्च, क्यों? डेटा इज स्मॉल और अनसॉर्टेड, इजी टू स्कैन वन बाय वन। Okay, third one, small data sets, linear search, simpler and faster for few elements. Large sorted data sets, they need binary sorted data, इसमें sorted data भी आ गया binary search के लिए। Efficient due to the data being sorted faster, logarithmic time, और इसका आंसर आएगा log की फॉर्म में आएगा, binary search में log की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च एक्यूरेट होगी क्योंकि डेटा इसमें लार्ज है और सॉर्टेड है। ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन, पाइथन आउटपुट आइडेंटिफायर, इसमें देखें एक्स की डेटा टाइप्स क्या है, लिस्ट, तो हमने क्या लिखा, क्लास लिस्ट शो करेगा। इसमें जस्ट एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, एक्स जस्ट एक हेलो स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड कंटेन कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगी, क्लास स्ट्रिंग आएगी। ये फ्लोट है तो यहाँ पे शो क्या करेगा, क्लास फ्लोट शो करेगा। Next one is evaluate the following expression using the correct order of operators in Python. तो हमने इसको evaluate करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको पता है कि ये 3 raise power 2, 3 asterisk means ये यूज हो रहा 3 raise power 2 और मैथमेटिकली 3 की पावर 2 यूज हो रहा। तो हमने पहले सबसे पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या यूज हो रहा है, हम मूव करें लेफ्ट टू राइट। आपको पता है जब सॉल्व करना आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेफ्ट टू
राइट मूव करना है और जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व करेगा। यहाँ पे ये के एक्सपोनेंशियल को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हिरार्की सेम होगी तो फिर आपने लेफ्ट टू राइट देखना है। जैसे कि एस्ट्रिक की और डिवीजन की हिरार्की सेम होती है, तो जो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जो पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल पहले आया था जिसने मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद लेफ्ट राइट की तरफ मूव किया, लेफ्ट टू राइट, तो डिविजिबल आ रहे 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपको देगा इसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसके बाद 10% डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये देखें, मैंने 2 लिखा, इसको सॉल्व किया, 3 रेज पावर 2 9 आ गया, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5, चलो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं फिलहाल, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 9, इसको मैं 11 भी कर सकता हूं, 11 प्लस 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 11 plus 10 divided by 3, 10 divided by 3, you will get remainder is 1 minus 1 multiply by 2 minus 1 0, remaining is 11 times 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। इसका आंसर क्या आएगा, 22। यहां मैंने सोल्व भी किया होगा, आंसर 22 निकाला होगा, यस, फाइनल आंसर इज 22। नेक्स्ट, ड्रा OR and NAND gates with their truth table। कह रहा है एंड गेट और नैंड गेट निकालो, ड्रा करो। एंड गेट, सपोज और गेट, ये मेरे पास और गेट होता है, ये मैंने और गेट ड्रा कर दिया, ये ए, ये बी और ये इसकी आउटपुट आ गई, ये और गेट आ गया। इसके बाद नैंड गेट, मैं एंड गेट पहले ड्रा करता हूं, ये एंड गेट मैंने ड्रा कर दिया, ये एंड गेट आ गया। इसके आगे मैं नोट लगा दूंगा, तो नोट लगा दूंगा तो ये नैंड गेट आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी है, ठीक है। अब और गेट में 0 0 रिजल्ट 0 मिलेगा, 0 1 रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 0 रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 1 रिजल्ट 1 मिलेगा। अब नैंड में उल्टो 0 0 एंड ने 0 देना था, लेकिन नोट की वजह से ये 1 देगा। 0 1 एंड ने इसका रिजल्ट 0 देना था, लेकिन नैंड क्या देगा, इसका रिजल्ट 1 कर देगा। 1 0 एंड कहता है 0, लेकिन नोट की वजह से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 1 के केस में एंड कहेगा 1, लेकिन क्योंकि नोट यूज किया ये कहेगा 0। ये मैंने इसका ट्रुथ टेबल भी ड्रा कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, राइट डाउन एनी 3 एडवांटेज ऑफ इन्फोग्राफिक्स के 3 एडवांटेज बताए। मेक कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही होता है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फोग्राफिक्स में जस्ट 1000 वर्ड्स से लिखी हुई कोई चीज जस्ट आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो ज्यादा डिस्क्राइब करती है एज कंपेयर टू 1000 वर्ड्स के। अट्रैक्ट्स अटेंशन थ्रू विजुअल अपील, enhance memory, retention of information। List on any 3 tools to create prototype। ये 3 tools है जो कि प्रोटोटाइप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, that is called Figma, Adobe XD and Sketch। ये हो गया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन टू द लॉजिक सर्किट। इसका लॉजिक सर्किट आपने बनाना है, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट हम बना लेते हैं जी, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए, ये एंड हो रहा है, इसमें भी एंड, इसमें भी एंड है, और बाद में तीनों के रिजल्ट को क्या किया जा रहा है, तीनों के रिजल्ट को और किया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड के साथ एंड हो रहा है। ये देखिए, मैंने ये एंड बना लिया, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। यहां मैंने एक्स लिखा, वाई लिखा, जेड लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एक और एंड में बना लेता हूं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, एक्स, ये एक्स का एक्स में लिख देता हूं, इसके साथ क्या हो रहा है, वाई, वाई के साथ नोट
प्राइम है, यानी कि y को मैंने यहां पे क्या कर दिया, नॉट लगा के अटैच कर दिया। इसके बाद z को मैंने डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, ये डेटा आ गया, आउटपुट आ जाएगी, ये आउटपुट आ जाएगी। इसके साथ तीसरे के साथ क्या आ रहा है, एंड x, यहां से मैं ले लेता हूं x के साथ नोट, x का नोट लगा दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद z में एज इट इज ले लेता हूं, ये z ले लिया। ठीक है, और इसकी ये आउटपुट आ गई। अब तीनों को मैं क्या कर देता हूं, इनको साथ और लगा देता हूं, ये मैंने और लगा दिया। ठीक है, इसकी इनपुट लगा दी, इसकी इनपुट इसके साथ अटैच कर दी, और इसकी इनपुट इसके साथ अटैच आ गई, अटैच कर दी, और ये मेरे पास f आ गया। ठीक है, next one is write a Python program that takes an alphabet as input and print whether it is a vowel or a constant consonant ch लिया, इनपुट, एंटर एन अल्फाबेट, जो भी आप अल्फाबेट लिखेंगे इसको वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट करेगा, लोअर में, ch में आ गया। बाद में मैंने चेक किया कि अगर ch इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता हो, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो प्रिंट वोवल कर दे। अगर नहीं हो तो फिर क्या, अगर एल एफ सी एच इक्वल टू इज अल्फा, अगर ये अल्फाबेटिकल है तो कॉन्सोनेंट शो करेगा, अदरवाइज वो क्या शो करेगा, इनवैलिड इनपुट। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम लिख दिया मैंने। What are the common application of simulation that benefits everyday activities? Number one is traffic simulation, help manage city flow and reduce congestion. Flight simulation, train pilots and in a safe virtual environment. Weather forecasting, मैंने क्या बताया आपको, ट्रैफिक सिमुलेशन, फ्लाइट सिमुलेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग, ये कॉमन एप्लीकेशन है सिमुलेशन की। क्वेश्चन इसकी और ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के साथ क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड ऑन कनेक्टिविटी, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी टेकन टू ब्रिज इट, कौन सी स्ट्रेटजी हम इसको अपनाएं कि इसको ब्रिज अप कर सके, इसको खत्म कर सके, गैप इसका कवर अप कर सके। डिजिटल डिवाइड लिमिट्स एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थकेयर, एम्प्लॉयमेंट फॉर अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज। ओके, स्ट्रेटजी क्या करेंगे, एक्सपैंड अफोर्डेबल इंटरनेट एंड डिवाइस एक्सेस। नंबर टू, लॉन्च डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम इन रूरल एरियाज। हम ऐसे इकदाम करेंगे तो हम इस ब्रिज को खत्म कर सकेंगे, इस यानी कि इसको रिड्यूस कर सकेंगे, इसका गैप को कवर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉजिक गेट्स आर यूजफुल इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में कैसे यूजफुल होते हैं, गिव एनी 3 एप्लीकेशंस। यूज्ड इन ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में, वहां पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अप्लाइड इन डिजिटल कैलकुलेटर्स एंड अलार्म क्लॉक्स में, इंटीग्रेटेड इनटू होम ऑटोमेशंस में एंड रिमोट कंट्रोल्स में डिजिटल लॉजिक गेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, लाइट को स्विच ऑन करना, ऑफ करना, आप एक बार बटन को प्रेस करेंगे वो लाइट ऑन होगी, दोबारा बटन को आप प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी उस सेम बटन को। तो ये एक्स और गेट यूज किया जाता है इसमें, तो ये इसका बहुत ज्यादा डेली लाइफ में इसका यूजेस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड causation? Illustrate with examples. Correlation, a relation where two variables move together but one doesn't necessarily cause the others. Causations, one variable directly affect the others. Examples, ice cream sales and drawing both increase in summer. Correlation, but ice cream doesn't cause drawing, that is no causation. Complete the following Python code to that when x is physics. ओके, सब्जेक्ट्स एक लिस्ट ले ली, सब्जेक्ट लिस्ट में क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ, फिजिक्स लिखा हुआ है। फॉर एक्स इन क्या लिखे, फॉर एक्स इन सब्जेक्ट्स हम देखेंगे, सब्जेक्ट्स को इस वाली लिस्ट को देखेंगे, एक्स इन सब्जेक्ट्स में, अगर एक्स
इक्वल टू इक्वल फिजिक्स हुआ तो ब्रेक करें, क्योंकि हमने लिखा हुआ है पाइथन कोड दैट एग्जिट व्हेन एक्स इज फिजिक्स। तो जब एक्स इक्वल इक्वल टू फिजिक्स होगा तो इसको क्या करे, ब्रेक कर दे, एग्जिट कर देगा। राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड मैक्स दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। इसमें हमने क्या करना है, डिफाइन फाइंड मैक्स फंक्शन का नाम लिख दिया, ए और बी लिया, इफ ए ग्रेटर देन बी तो रिटर्न ए करे, एल्स रिटर्न बी कर दे। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज फिजिबिलिटी स्टडी an essential step in SDLC? In what ways can a technical feasibility study help identify challenges related to the infrastructure or compatibility requirement of a software project? तो इसके लिए why does feasibility study an essential step in SDLC? क्योंकि SDLC में feasibility study हमारा essential step होता है, जिसमें हम technical feasibility देखते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखती है, जिसमें हम देखते हैं कि वेदर हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकेंगे या नहीं, या हम इधर ही स्टॉप कर देंगे। तो ये एक फिजिबिलिटी स्टडी का फायदा होता है। इट हेल्प डिटरमिन वेदर द प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड वर्थ परस्यूइंग बिफोर एलोकेटिंग मेजर रिसोर्सेज, कि हम बाद में पता चले कि ये तो प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, हम इतना इस पे पैसा भी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसकी फिजिबल, ये फिजिबल भी है या नहीं। नेक्स्ट, Identify the following statement as parameter or statistics. यहाँ पे लिखा हुआ है the average height of all students in your entire school, that is called the parameters. ये parameter, the average height of students in your school, B statistics. C the average score in mathematics test for student in your class at your college, statistics. The average score in a mathematics test for all students in your city, number option is D, that is the parameter. The standard deviation of the age of 50 employees randomly selected from the corporation, that is statistics, and this one is the student deviation of the age of all employees in a large is, that is a parameter. Because a parameter describes a characteristics of an entire population, उस सारी entire population की characteristics को बताता है, जबकि statistics describe a characteristics of a sample taken from that population, उस जो sample लिया गया हो उस population में से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम statistics कहते हैं। तो हम K-map बनाते हैं। K-map बनाने के लिए क्योंकि ABC यूज किया है, 2 raised power 3 that is 8 ब्लॉक्स बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, और इसको हम लिखेंगे A प्राइम A, और दूसरे को लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 1, इसको लिखेंगे हम 0 0 0 1, इसको 1 1, क्योंकि ग्रे कोड में हम लिख रहे होते हैं ये 1 0। तो ये क्या था, B C प्राइम आ गया, B C B के ऊपर प्राइम आ गया, ये B C प्राइम आ गया। पहला A प्राइम B प्राइम C प्राइम, तो ये कहां पे लाई करेगा, ये ला इधर आ जाएगा 1। दूसरा A प्राइम B C प्राइम, A प्राइम इधर से A प्राइम B और C प्राइम इधर 1 आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट A B प्राइम C प्राइम इधर आ जाएगा, नेक्स्ट ये भी आ गया। नेक्स्ट A B प्राइम C, A B प्राइम C यहां पे आ जाएगा 1, और इसके बाद मैंने कितने लिख लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके बाद क्या आएगा, A B C प्राइम, A B C प्राइम 1 इधर आ गया 1, और इसके बाद A B C इधर आ गया, A B C इधर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब
मैक्सिमम हमने इसके ग्रुप बनाने, एक ग्रुप तो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा ग्रुप बनेगा, ये देखिए, ये ग्रुप ऐसे और ये ग्रुप ऐसे, ठीक है, 4 का। तो इसमें देखिए जो ये वाला ग्रुप था, इस ग्रुप में क्या क्या लिखेंगे, इस ग्रुप को क्या लिखेंगे, ए, इधर से मैंने ए लिखा, ए लिखा, और ऊपर से मैंने क्या लिखा, बी, बी प्राइम, सी प्राइम, और ए, बी प्राइम, सी, फिर मैंने ए लिखा, तीसरी वैल्यू बी, सी लिखी, चौथी वैल्यू ए, बी, सी प्राइम लिखा। इन सब में कॉमन कौन सा हुआ, ए, इसका आंसर आएगा ए प्लस। अब देखना इनमें चारों में कौन सा कॉमन है। अब इनमें मैं इनमें देखने लगा हूं और इसमें देखने लगा हूं। अब इसका क्या आएगा, इसका आएगा, नंबर आएगा ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, ओके। और नीचे लेकर क्या आएगा, ए आएगा, बी प्राइम, सी प्राइम, और इस वाले का क्या आएगा, इस वाले को लिखने के लिए ये ए प्राइम, बी, सी प्राइम, और नीचे वाले का क्या आएगा, ए बी, सी प्राइम। अब देखो इन सब में सी प्राइम कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। तो इसका आंसर क्या है, ए प्लस सी, इसका आंसर आ गया फाइनल, ए प्लस सी इस पूरे का, ठीक हो गया। Write a Python program to compute the area of circle and rectangle by using a function. Okay जी. Import math, define a function, area underscore circle, name of the function, radius is the parameter, return math.py times radius time radius pi r square. तो ये इसको रिटर्न करेगा एरिया। डिफाइन एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल, रिटर्न क्या करेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ और विड्थ इसमें पैरामीटर्स है। एग्जांपल यूजेस, प्रिंट सर्कल एरिया, एरिया सर्कल एरिया, आपने यहां पे क्या किया, कॉल किया, मेथड को कॉल किया विद आर्गुमेंट पैरामीटर पास 5 पास किया, तो ये 5 किसके पास चला जाएगा, ये 5 जाएगा रेडियस के पास। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.147, तो रिटर्न करेगा दोबारा इसका, यहाँ पे जो भी आंसर बनता होगा तो यहाँ पे लिखेगा सर्कल एरिया, आगे उसका आंसर लिख देगा। रेक्टेंगल एरिया ये डिस्प्ले करेगा, रेक्टेंगल एरिया रेक्टेंगल 4 फर्स्ट पैरामीटर लेगा जी लेंथ, सेकंड पैरामीटर किसके पास जाएगा, विड्थ के पास। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 4 टाइम्स 6 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, एरिया रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू 24, इसका आंसर शो कर देगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डेटा कलेक्शन मेथड, contrast any two collection methods with respect to strength, weakness and reliability and validity। जी व्हाट आर द, यहाँ पे देखिए जी, कंपैरिजन बिटवीन सर्वे वर्सेस ऑब्जर्वेशन। सर्वे करना किसी भी साइट का जहां पे हमने प्रोजेक्ट बनाना उसका सर्वे करना, वहां पे देखना कि उसमें काम कैसे हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करना, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है जी। स्ट्रेंथ, quick and cost effective for large samples. Observation captures actual behavior in real settings. Weakness, many may suffer from response bias. Observation में weakness क्या होता है, time consuming and observation bias possible maybe. Reliability के लिहाज से depend on consistency of equation, इसमें सर्वे consistency होती है, observation में depends on training ऑफ ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कितना ट्रेंड है, वो कैसे उसको ऑब्जर्व करता है। वैलिडिटी कैन बी लिमिटेड बाय डिसऑनेस्टी और मिसअंडरस्टैंडिंग, हाई इफ ऑब्जर्वर रिमेन्स न्यूट्रल। अगर वो ऑब्जर्वर न्यूट्रल होगा तो वो ज्यादा इसमें
वैलिडिटी होगी। व्हाट इज एनक्रिप्शन? कंपैरिजन बिटवीन सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। ये हमने सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक क्या लिख रही है, एफिशिएंसी लिख रही है, सिक्योरिटी, की लेंथ एंड लार्ज डेटा हैंडलिंग लिख रही है। एफिशिएंसी सिमेट्रिक में फास्टर होती है, एसिमेट्रिक में स्लो होती है, सिक्योरिटी इसमें लेस होती है, उसमें ज्यादा होती है, की लेंथ में शॉर्टर होती है, 128 बिट से लेकर 256 बिट तक होती है, जिसमें लॉन्गर होती है 1024 बिट 24 प्लस सम बिट होती है। लार्ज डेटा हैंडलिंग होती है, सुइटेबल फॉर लार्ज फाइल एंड दिस इज नो आइडियल फॉर लार्ज डेटा डायरेक्टली। ये इसके डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स। ये हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के थ्रू हमने इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको देखते हैं जी, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया 8, 37 और 5। मैंने पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया। 9 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, 4, 1, 8, 37, 5। बाद मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया, 9 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 10 आ गया, 1, 8, 37, 5। अब मैंने 10 और 1 का किया, 9 इधर, 4 इधर, 1 इधर, 10 इधर, 8, 37, 5। अब इनका कंपैरिजन हुआ, 9 इधर, 4, 1, 8 इधर, 10, 37, 5। अब 10 का और 37 का, 9, 4, 1, 8, 10 इधर ही रहेगा, 37 भी इधर रहेगा, नो कंपैरिजन। अब 5, 37 और 5 का, 9, 4, 1, 8, 10, 5 इधर, 37। लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा लार्ज, इसमें हमें सेंडिंग ऑर्डर करना था ना, हाँ, वो एक साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट आइट्रेशन हो गया मेरा। ये आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको हमने आगे मूव करना। हम सेकंड आइट्रेशन के तौर पर मूव करेंगे। अब देखिए ये कैसे मूव कर रही है। देखा जाए तो ये पहले इसका कंपैरिजन हुआ, फिर इसका कंपैरिजन हुआ, फिर इसका कंपैरिजन हुआ, फिर इसका कंपैरिजन हुआ, फिर इसका कंपैरिजन, फिर इसका कंपैरिजन हुआ। तो देखिए फिर नेक्स्ट बाद में इसका कंपैरिजन होगा, इसका कंपैरिजन होगा, इसका कंपैरिजन, ऐसे ऐसे। तो ये देखिए ये जस्ट लाइक अ बबल, ये बबल बन रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बबल सॉर्ट। ऐसे ऐसे ऐसे, और ये देखिए बबल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम सेकंड आइट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं सेकंड आइट्रेशन मूव करने लगा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम थी, 7 इसमें थे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लास्ट मेरे पास क्या था, 9, 4, 1, 8, 10, 5, 37। अब इन दोनों का कंपेरिजन, फिर इधर से कंपेरिजन होगा, 9 और 4 का, 4 इधर आ जाएगा, 9 इधर, 1, 8, 10, 5, 37। अब इनका कंपेरिजन होगा, 9 और 1 का, 4, 1 इधर, 9 इधर, 8, 10, 5, 37। अब 8 और 9 का कंपैरिजन होगा, 8 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे। 10, अब 10, 9 और 10 का होगा, 10 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। अब आगे पहले 5 पड़ा हुआ था, 37, सॉरी 9 इधर ही रहेगा क्योंकि 9 उससे छोटा है। 9, 10, अब 10 का और 5 का होगा, 9, 5 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और 37। अब 10 का और इसका होगा तो ये सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं इधर लिख देता हूँ, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे 8। तो ये मेरे पास सेकंड आइट्रेशन आ गया, 4, 1, 8, 9, 5, 10, 37। अब हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये थर्ड आइट्रेशन मैं लगाने लगा हूँ यहाँ पे। थर्ड आइट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
डेटा मेरे पास क्या 4 1 8 9 5 10 37 इसका कंपैरिजन होगा 1 इधर आ गया 4 इधर आ गया 8 9 5 10 37 अब इनका होगा 1 ऑलरेडी इधर 4 इधर रहेगा 8 9 जो अगर छोटा अगर ये बड़ा नंबर होगा तो फिर उधर जाएगा 10 37 इसके बाद 8 और 9 का 1 इधर 4 इधर 8 भी इधर रहेगा 9 भी इधर रहेगा 5 10 37 अब देखिए 9 और 5 का होगा तो 5 इधर आ जाएगा 9 इधर आ जाएगा 10 ये 37 9 और 10 का होगा ये भी इधर रहेगा 10 भी इधर रहेगा 37 भी इधर रहेगा ये 8 आ जाएगा 4 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा ठीक हो गया ये तीसरा आइट्रेशन हो गया ये ठीक है अब हम फोर्थ आइट्रेशन की तरफ मूव करता हूँ फोर्थ आइट्रेशन की तरफ 1 2 लाइनें टेढ़ी लग रही 1 2 3 4 5 6 7 तो चले देखते हैं 1 4 8 5 9 10 37 इनका कंपैरिजन होगा नो चेंज 4 8 का कंपैरिजन होगा नो चेंज 8 और 5 का कंपैरिजन होगा यस 5 इधर आ जाएगा 8 इधर आ जाएगा 9 इधर 10 इधर 37 4 इधर 1 इधर तो अब देखिए 1 4 5 8 9 10 ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है तो लास्ट में क्या करेगा लास्ट में हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी 1 ये मैं लिखने लगा हूं 1 इसके बाद 4 5 8 9 10 37 तो ये सॉर्टेड लिस्ट आ गई है ठीक हो गया राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ लिस्ट बाय यूजिंग व्हाइल लूप वेरी गुड बहुत आसान है जी नंबर्स आपने दे दिए 10 9 26 4 1 8 37 5 लिस्ट में i इक्वल टू 0 लगा दिया ठीक है इवन भी मेरे पास फर्स्ट टाइम 0 इनिशियलाइज कर दिया और भी मेरे पास 0 मैं कहता हूं while i लेस देन इक्वल टू लेस देन लेंथ ऑफ नंबर्स तक मूव करें लेंथ ऑफ नंबर्स तक मूव करें ठीक है इफ नंबर्स ऑफ i को डिवाइड करें 2 के साथ अगर वो 0 आ जाए तो इवन में ऐड कर दे इवन में 1 का इंक्रीमेंट कर दे इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं इवन इक्वल टू इवन प्लस 1 ऐसे भी लिख सकता हूं एल्स ऑड में इंक्रीमेंट करे इसको भी ऐसे लिख सकता हूं ऑड इक्वल टू ऑड प्लस 1 और फिर इसमें 1 का इंक्रीमेंट करे इंक्रीमेंट करने के बाद लास्ट में मेरे पास इवन नंबर शो कर दे इवन नंबर की जगह इवन नंबर्स और ऑड नंबर के सामने ऑड नंबर शो कर दे तो आई होप और एक और पढ़ा हुआ मैंने समझा ये लास्ट था ओके व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन एनी टू टेक्नोलॉजी दैट एनेबल ब्लॉकचेन जी ब्लॉकचेन क्या होती है और 2 टेक्नोलॉजी बताएं दैट ब्लॉकचेन एनेबल करती है नंबर 1 blockchain is a decentralized digital ledger that records transactions securely across multiple computers so that record cannot be altered retroactively ये बहुत सिक्योरेबल ट्रांजैक्शन होती है इसमें ब्लॉकचेन में ठीक है two technology that enable blockchain that is cryptographic and other one is peer-to-peer P2P network and cryptography. Second question, what is the reliable information source? Explain any 4 source of reliable information. What a reliable information source provide accurate होने चाहिए, verified होने चाहिए and unbiased contents that can be trusted by decision making or research. और 4 मेजर सोर्सेज हैं आप जर्नल्स से डेटा गेट कर ले गवर्नमेंट वेबसाइट से बुक फ्रॉम रेप्यूटेड पब्लिशर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो ये एक रिलायबल सोर्सेज है और एट द लास्ट आई वांट टू से दैट थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स प्लीज share this video with your friends they will get the benefit and inshallah you will be connected with me for the next year also. Thank you. Jazakallah khair. Please at the end, please write me a good comment. Jazakallah khair. Jazakallah khair.